A very good afternoon. This is Friday afternoon, and you're watching this live broadcast on News the Truth on our News the Truth NTD by Tamal platform. Now, we are once again reporting live from outside BJP party office. This is BJP state headquarters here in Kolkata, which is Mulidhar Shane Lane. And for the past 4 days, this very stretch of the lane, which leads to the party office of BJP, is literally under the siege of a protest. And this protest that started with the people from the Sikh community, it seems like now expanding. Yes, you guessed it right. This is over the controversial Khalistani, quote unquote, Khalistani remark, Khalistani jibe that Shubhendu Adhikari, BJP leader of opposition in the state of West Bengal, has allegedly made at IPS officer Jaspreet Singh while he was on duty wearing his uniform and had stopped a BJP delegation from going to Shandesh Khali just 4 days back. Today is the fourth day of the protest. The first day of the protest, which started with about 20 people assembling here, led to the second day, which only saw expansion of that small little stage to another canopy. On the third day, we saw the people from the Sikh community go and meet the state governor, Dr. C.V. Anand Bose, and submit a deputation. And on the fourth day, this is how the street looks like. You have got chairs after chairs being laid down, and generally outside BJP party office, we haven't really seen a protest of this kind before. But yes, even though there had been political protests which had erupted for BJP party office, but then they were stopped at right outside on the main road. But here, it's a different situation where people calling themselves absolutely apolitical, outraged by that Khalistani remark, and also outraged by the emotion that one single video had evoked, where IPS Jaspreet Singh had simply not registered that remark, but had also questioned BJP leaders for being hurtful towards his religion, towards his pagri. Many people say it's hard for them to take out that one single line from their mind. मैं पगड़ी पहना हूँ इसीलिए आपने मुझे खालिस्तानी बुलाया. That one sentence has also brought to fore a larger question. Has identification of people by their looks, and also the race, has only led to more prejudice, and that prejudice has it now been institutionalized in a manner which has started to hurt public sentiment and religious emotions for people. On the fourth day of the protest, as you see, the crowd has only swelled further. Why? Because yesterday, after meeting the state governor, the call which was given by the people from the Sikh community that it should not be an isolated protest by people belonging to one community, and people from other communities were also called in to join this protest. And thus, many people who essentially not belonging to the Sikh community have also joined in this protest. And as you see over here, it is just not a camaraderie that they are trying to reflect. It is also a picture of harmony, and it is also a picture of togetherness. And I would begin my conversation for the day today from this very batch. Sir, I just saw you taking a selfie. आपको मालूम है कि इस जगह पे protest जो हो रहा है खालिस्तानी रिमार्क में हो रहा है, और कल सब सर्व धर्म के लोगों को बोला गया जो आना चाहते हैं प्रोटेस्ट में आ जाए. आप आ गए और सेल्फी खींच रहे. क्या मैसेज है आपका सर? पहले तो आपका नाम बताइए. मेरा नाम मोहम्मद जावेद आलम है. ओके. और जो आपका मैसेज तो आपने पहले ही कह दिया कि यहाँ पर टुगेदरनेस, हम एक साथ इकट्ठे हैं. भारतवासी तमाम हिंदुस्तान के लोग एक साथ में हैं, जो पीस लव करते हैं अपने कंट्री से, वो एक साथ खड़े हैं. आज यहाँ पर हम लोग सब एक साथ इसीलिए खड़े हैं. किसी एक टर्बन पहनने वाले को, एक आईपीएस ऑफिसर को अगर कोई खालिस्तानी बोल दे, वो गवर्नमेंट इंडिया के अंदर में नौकरी कर रहा है, सर्विस कर रहा है, उसको आप अगर खालिस्तानी बोलोगे तो ये उसके लिए बेइज्जती है, उसके लिए वो गाली है. उस गाली के खिलाफ में हम तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं. कुछ मर्तबा ये भी देखने को मिला कि टोपी पहनने के लिए किसी को कोई नाम से पुकारा गया,
वो भी गलत था। और जैसे इधर पे माना जा रहा है कि एक आईपीएस ऑफिसर को खालिस्तानी बुलाया गया उनके पगड़ी के लिए, और इन लोगों का कहना है कि ये भी गलत है। सर कोई तो बात कीजिए, ये करने से कैसे होगा? सर आप लोग सब इधर पे प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं और डिमांड क्या है? सर मैं तो देख सकता हूँ एक पोस्टर भी आप लेके खड़े, हुई डिमांड अरेस्ट ऑफ बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी, क्या कहना चाहते हैं सर? मैं चाहता हूँ कि इमीडिएटली शुभेंदु अधिकारी को इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए। हाँ। वो जो खालिस्तानी वर्ड किए हैं बहुत ही गलत वर्ड किए हैं, इससे बहुत गलत वर्ड किए हैं, इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए। थैंक यू। ओके सर, आप यंग हैं, आपको लगता है देश में ऐसे जो शब्द है जो जिसके इस्तेमाल से किसी को ठेस पहुंच सकता है, ऐसे भाषा का प्रयोग होना बंद होना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने ये कहा और ये नहीं कहा, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेशन साबित करेगा, लेकिन जो एक दौर है जिसमें लोगों को आसान लगता है किसी को अपने पगड़ी के लिए या फिर टोपी के लिए या फिर कोई धागा के लिए कुछ नाम बुला दे, ये जो एक दौर है इसको बंद होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात तो किसी के बारे में हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हम लोग भाई हैं, और किसी के बारे में ऐसा बोलने का कोई उनको राइट नहीं है। अच्छा, तो ऐसा बोलना उन लोग बंद करे एकदम, बस यही बोलना चाहिए। ओके सर, आप क्या कहना चाहते थे, बोलिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि शुभेंदु अधिकारी ने बोला है कि मैंने नहीं बोला है, हाँ। लेकिन आप एबीपी आंदोलन खोल के देख लीजिए उस दिन का कवरेज, उसमें डायरेक्टली उसमें कहा गया कि खालिस्तानी आ जाओ। मैं कोई चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये नहीं, ये सच है कि एक पर्टिकुलर बंगाली न्यूज चैनल एक वीडियो चलाया और एट्रीब्यूटिंग इट टू दैट वेरी एट्रीब्यूटिंग इट टू that very Bengali news channel where the video was shown, claiming that they have a footage where it is clear that Khalistani has been uttered by Shubhendu Adhikari. That's what they have claimed, and that video is also in circulation. So going back to the visual, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग आज इस जगह पे इकट्ठा हुए हैं, और लोग सिर्फ सिख संप्रदाय से नहीं है, मुसलमान संप्रदाय से है, हिंदू से भी है, और सब आके इधर पे अपने मैसेज रख रहे हैं। और उनका कहना है कि ये जो एक टेंडेंसी है लोगों को नाम से बुलाना, ये टेंडेंसी के विरोध वो लोग आवाज उठा रहे हैं। सर आपको पिछले 4 दिन से मैं देख रहा हूँ इधर, और पहले दिन शायद 15-20 लोग थे, आज 100 के करीबन लोग आ गए, बाकी धर्म से भी लोग आ रहे हैं, और आप लोग ने ये कॉल भी दिया था कि सबको आना चाहिए, ये सिर्फ एक इंसान के बारे में नहीं है, ये देश के लिए है। क्या कहना चाहेंगे सर आज? जैसा कि आज आप देख लीजिए कि सब धर्म के जितने भी हैं नुमाइंदे हैं आज हमारे दर्द को लेकर यहाँ हाजिर हुए हैं। तो 4 दिन से ये जो धरना चल रहा हुआ, ये धरना जो हमारा पगड़ी को लेकर धरना था, हमारे मान सम्मान को लेकर धरना था, तो आज ये हमारा मान सम्मान है, कल किसी और के साथ है। तो ये आज सब धर्म के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अपनी होंद को लेकर इकट्ठा हुए हैं, अपने सम्मान को लेकर इकट्ठा हुए हैं। और सिख धर्म के बारे जैसे आपको मालूम है कि जोशीला कौम है, मेहनती कौम है और सेवादारी कौम है, तो इस हिसाब में सब आते हैं, सब मिलजुल के आते हैं और सब हमारे साथ खड़े हैं आज। सर मैं और ये भी देखा कि वो एक सैफरन कलर का कपड़ा भी लोगों को दिया जा रहा है, उसका मकसद क्या है? पगड़ी के लिए? नहीं सर, वो हमारा एक सम्मान होता है। अच्छा, हम एक सम्मान देते हैं, अगर कोई भी हमारे घर में आता है, हमारे साथ चलता है, तो हमारा एक सम्मान देता है, हम सम्मान उसको दिए हैं सर। अच्छा, जो हमारे साथ में है। और आज मैंने देखा इधर पे लंगर का भी व्यवस्था रखा गया। लंगर 3 दिन से चल रहा है सर। अच्छा। लंगर 3 दिन से चल रहा है। जो आ रहे हैं सबको खाना सब खा रहे हैं। यहाँ लोकल जो आदमी है वो भी लंगर छक रहे हैं सर यहाँ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आई विल जस्ट वांट टू शो यू द पोस्टर। वी आर प्राउड सिख एंड नॉट खालिस्तानी, आवर turban is our pride, BJP leader Shubhendu Adhikari should be arrested. Just to give you a sense of the place, I'll ask my camera person Ronnie Chatra to just lift the phone as much as possible because bandwidth could be a concern out here. Sir, आपका नाम बताइए सर। My name is मोहम्मद बिलाल मुर्शिद। बिलाल मुर्शिद। Yeah. बिलाल जी, आप ये पोस्टर लेके खड़े हैं और इसमें तो टर्बन है, आर टर्बन इज आर प्राइड, और जो टर्बन सिख संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, तो आप ये पोस्टर हाथ में लेके क्या मैसेज देना चाहते ये हैं? मैसेज देना चाहते हैं कि ये एक इंडिया सेकुलर है, यहाँ हर रिलीजन का एक रिस्पेक्ट है और उसको मेंटेन करना चाहिए। पगड़ी उतारने वाला काम जो है हम लोग नहीं करते हैं, बल्कि उसको मजबूती के साथ उसके साथ खड़े रहते हैं। ये है हिंदुस्तान का, ये सोच है, और यही सोच को जो है
आगे इसके करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। पगड़ी को माना जाता है कि सिर्फ जी। एक इंसान का नहीं, पूरा देश पूरा का पूरा देश का जी इज्जत जी माना जी जाता जी है। जी तो आपको लगता है जो आईपीएस ऑफिसर ने जो कहा, जी जी उससे सिर्फ एक संप्रदाय को ठेस पहुंचा है कि सबको ठेस सबको पहुंचा है? सबको ठेस पहुंचा है। ये एक रिस्पेक्ट की बात होती है। अगर जो है लड़की का बाप अपना पगड़ी उतार के रखता है, माने अपना इज्जत को रख रहा है, और किसी के इज्जत के साथ खेलना ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो उसको सपोर्ट नहीं करूंगा। लड़की के पिता कभी अपने पगड़ी नहीं, को ये मत बुरा ना, उतारिए। हाँ, बात तो लड़की सही भी है। अपना घर की ये इज्जत है। रिस्पेक्ट के लिए आई नो, रिस्पेक्ट के लिए, लेकिन जी, ये एक जो ये एग्जांपल दिया मैंने। आई नो, आई गेट योर पॉइंट, आई गेट योर या बट द दैट पॉइंट इज दैट वी शुड कम्युनिकेट, द पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन मेन शुड पॉइंट also है, हाँ, फ्रॉम द should सब्जेक्ट also मैटर इज दैट इट शुड right, कम, I get your point, but then the दैट point इज of मैटर। communication should also evolve with time. Because in India we are living in such a thing, so That they should understand that real language, for their language, for their convenience. I have spoken this word. I Otherwise, get it your is point, sir. otherwise I it is get your not point. real. I get your point. जैसे मैंने आपको कहा था, आप देख सकते हैं इधर पे. I just asked my sorry. I just asked my camera person to show that the stage is no longer dominated by people belonging to one community, but then many people have come out from the Muslim community, from Hindu community. They have all come down here and they are trying to give out a larger message of communal harmony and togetherness. They are saying that this particular, this particular act which has hurt IPS officer Jaspreet Singh, it's simply not restricted to one individual, that is Jaspreet Singh. It is also for the entire country. Now, this is BJP party office and I do not really see anyone inside. This is a little weird. I haven't really seen this side of BJP party office before. There is one gentleman trying to man the gate. This was a different look. There was a different look of the party office on the day one of the protest. But then what you've been told by sources within BJP that they don't want to go for a confrontation with them because, mind it, it's a very sensitive issue. We have seen Prime Minister Narendra Modi even address crowd wearing a turban, trying to give out the message of of togetherness and his emotion for the Sikh community. But then the Khalistani remark has been very hurtful, and that's what they are saying, for which they are holding BJP responsible, and the reason why they are demanding an apology from the Prime Minister and from the Home Minister. They are saying nobody has apologized as yet, even though from BJP the standpoint that has been taken that this is nothing but political posturing, and this political posturing is nothing but to divert attention from the Sandesh Kali matter. The reason why I have come from that side to this side is because this water tank was not there on day one. The water tank has come down. The langar arrangement is here. There is food being served to people, which essentially highlights their which essentially highlights the fact that, okay, anyone passing by, they are serving tea and food. Going back to the point, the fact that food is now being served here, which is also part of the culture, but also highlights the fact that they are possibly not calling off their protest anytime soon. Because from day one, they are saying their protest would continue, and the protest would continue till the time the apology comes. Now, there is some music going on in a way to boost the morale of the people who have come down, and also to, in a way, highlight the tradition which is so integral, just not to the Sikh community, because it is also integral to the India's culture. India as a country is an amalgamation of so many different cultures, and that's why our country is so diverse. So this song, this dhun is not restricted to one community or one religion. It is definitely integral to the tradition and the culture and the rich heritage of our country. And thus they are saying that every individual belonging to different communities would be welcomed, and they have all come down. Minded, on the first day I have been able to take some statements from the BJP leaders, but आज फिलहाल के लिए इधर पे कोई है नहीं, तो मैं उनका कोई स्टेटमेंट तो ले नहीं सकता. और उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि उनकी तरफ से कुछ गलती किया नहीं गया. डे वन से वो लोग कह रहे हैं कि ये एक साजिश है और संदेश खाली से ध्यान हटाने की एक साजिश है तृणमूल कांग्रेस से. और उनके जो आईटी सेल के लीडर्स हैं, उन्होंने ऐसे तस्वीरें भी निकाले जहाँ पे गुरमीत सिंह जो है उनको दिखाया गया, जो पहले दिन से आज भी है, कि वो तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए और ये एक राजनीतिक प्रोटेस्ट है. लेकिन गुरमीत जी का कहना है कि वो तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा हो या फिर खालसा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हो या फिर कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हो,
हो, लेकिन उनका पहला परिचय है कि वो एक सिख है, और उस परिचय के आधार पे उन्होंने ये प्रोटेस्ट में सिर्फ हिस्सा नहीं लिया, उस प्रोटेस्ट को बुलाया, और उनका कहना है कि ये सिर्फ आईपीएस जसप्रीत सिंह का मामला नहीं है, एक हर एक इंसान का मामला है, और इसीलिए they claim the protest would continue. Well, I've been checking the watch constantly because I will be joined by Saurabh Shukla. I would ask my producer Aniket and Titash to add Saurabh Shukla to this conversation. Saurabh Shukla is a renowned journalist and he is with Red Mike. Saurabh Shukla has joined us now. There is a reason why I have added Saurabh Shukla to this conversation, and I wanted to have a conversation with him. Number one, he had been covering the farmers' protest for the past several weeks. He and his camera person, Shayan, both had escaped the tear gas shells being fired from the police and all other force being used against the farmers while covering the protest. Even he has endured all of that, but he kept on reporting from the ground. And the reason why I'm connecting with Saurav is to understand both essentially revolve around a centrifugal point, that is the Sikh sentiment. The farmers who had come out at the Haryana-Sindhu border, they too are from Punjab and mostly from the Sikh community. The farmers' protest has also seen a death which has already been reported. And over here too, it's a Khalistani remark which has upset the people from the Sikh community, saying that the pagri was heard. Saurav, if you can hear me, welcome to the show. Thank you, Tamal, for having me. Thank you for having me. Tamal, thank you for having me. I can hear you loud and clear. I can't hear Saurav. If I can just give the phone to. Yeah. Am I audible to you, Tamal? Am I Just audible to add, you? I can't. So just bear with us. I'm trying to connect the audio with Saurav so that I can listen to him. There is some a small technical glitch. The point is, Saurabh Shukla, as I said, had been covering the farmers' protest, and Saurabh Shukla had also been in middle of the entire protest, which has been led by people, the farmers who are essentially from the Sikh community. Saurabh, brother, if you can hear me. You, Tamal, I can hear you loud and clear. I can hear you. Yes, I can. Thank you Saurav, thank you so much for joining. Saurav, just to give you a sense of the picture, I'll ask Ronnie to show the visuals. Just look at the visual. This is the BJP party office, Saurav, and right outside BJP party office, this is the kind of gathering, and the gathering has only swelled with time. In the past 4 days, the numbers have only increased, and it is all over the Khalistani remark. While you were covering the farmers' protest, Saurav, did you come across any sentiment from the farmers that they are also aware of this? Yes, they are. Yes, they are, Tamal. They are very much aware of this, and they are very much agitated and angry. In fact, yesterday I was speaking to a farm leader who is leading the protest at Shambhu border, and he said that it is very easy that whosoever will say anything against BJP leaders or Modi government, they will call them anti-national. In fact, if there is a Muslim, then they will say he's a Pakistani. If a Sikh, then they will conveniently call them Khalistani, and if Hindu, then anti-national, Naxalite, Tukre Tukre gang. So they are just trying to divide the people of India who are abided by the constitution, our great constitution of Republic of India. So definitely, Tamal, they are very much aware of it, and they are in fact very angry, and they've been asking for apology the same way the people who are there behind you seeking apology from BJP leaders. So definitely sentiment against the BJP leaders of Bengal, and apart from that, a lot of people over on social media have called them Khalistani. They are saying they are not farmers, they are anti-India people, they are supporters of Khalistani. So they are very much angry. In fact, Tamal, if you next time, hopefully you will be, we both will be reporting together when next they will give the call of Delhi Cooch. So you will go and you will see that the people who are there, their generations. In fact, there are retired army officers who are there protesting.
doing langars and feeding people. In fact, retired Air Force doctors who are giving first aid to the farmers who are injured from the tear gas shells and from the pellet bullets. And I've come across a lady, a farmer lady, and I've asked her this question, Tamal, that a lot of people, a lot of right-wing people are writing that this is a Khalistani movement. This is not the farmers' movement. She said that I am a farm leader. I've been sitting here from last 8 days. My grandfather, my grandfather served in Azad Hind Fauj. My father served in army. My son is serving in army, and I'm sitting here. So we don't need certificate of patriotism from the people. The people of Punjab, they have given their blood for this country at China border, at Pakistan border, at Bangladesh border. Everywhere we've been deployed, and we have given our supreme sacrifice. At least people who have not participated in the independence movement of the country, the people from RSS should not preach us about patriotism. So these are the sentiments from the Shambhu border where these farmers are sitting from last 10 days. सौरभ, ये चीज़ और मैं हिंदी और इंग्लिश में स्विच करूंगा। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट है कि हिंदी और इंग्लिश में मैं स्विच करता रहूं। और सौरभ, ये जो आपने एक मुद्दा छेड़ा सर्टिफिकेशन का, ये पहली दफा नहीं है कि लोग कोशिश करते हैं किसी को सर्टिफाई करे कि आप देश के हित में हो या देशद्रोही हो। और ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट 2020 में हुआ, उस 2020 की फार्मर्स प्रोटेस्ट में हमने देखा कि एक सेक्शन ऑफ मीडिया में एक चीज कहा गया कि आप टूल किट के हिस्सा हो, टूल किट के हिस्सा हो। सो ये टूल किट चीज क्या है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और आज तक होम मिनिस्ट्री से ये टूल किट के ऊपर कोई फॉर्मल स्टेटमेंट आया नहीं है। ये सिर्फ टिप्पणियां जो मीडिया से आ रही है, एक सेक्शन ऑफ मीडिया से आ रही है। देखिए तमाल, हम और आप दोनों ही उस सेक्शन का हिस्सा कभी ना कभी थे, और हमें पता है कि चीजें कैसे मैनिपुलेट की जाती हैं। ये टूल किट वाला मामला आया था 2021 26 जनवरी को, जब किसानों ने लाल किले तक अपना ट्रैक्टर मार्च कर दिया था। उसके बाद ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट आया था, फिर उसमें आपको याद होगा रिहाना का ट्वीट आया था, बेंगलोर की एक स्टूडेंट का ट्वीट था। फिर ये कहा गया कि एक एक्सेल शीट पर सेम ट्वीट लिखा गया और उसको प्रोपेगेट किया गया। तो ये टूल किट के बारे में कहा गया था कि एक सुनियोजित तरीके से, एक प्लान तरीके से इंडिया को बदनाम करने की कोशिश है। उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक टूल किट था जिसमें लता मंगेशकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, तमाम बड़े बड़े दिग्गज देश के हैं जो बड़े नाम हैं, उन्होंने भी सेम ट्वीट किए थे सेम लैंग्वेजेस में। तो वो तो जो टूल किट है वो दोनों तरफ से रहे। लेकिन फिर वही बात है कि ना, एजेंडे बहुत लोगों के हो सकते हैं, पर जो मेन मुद्दा है जिसको लेकर के आप रिपोर्ट कर रहे हैं और हम भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि किसी भी मूवमेंट को अगर कोई भी इंसान है उसके कपड़ों से, उसके मजहब को लेकर के टिप्पणी की जाए, वो भी रिपब्लिक, वी आर इंडिया, बट द ग्रेटर पार्ट इज दैट वी आर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हम एक संविधान से चलने वाला देश है। हमारे प्रीएम्बल में सेकुलरिज्म। सौरभ, आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये चीज हम लोग हमेशा देखते हैं, लेकिन आज आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आप देखिए इधर पे सारे एक कलर की पगड़ी पहनने का एक जस्ट सिंबॉलिकली टू गिव आउट द मैसेज। सर, आपसे तो बात किया मैंने, आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम जैन खान। हाँ, जैन खान। जैन खान, आपने पगड़ी पहन लिया। हाँ जी। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते हैं जैन? क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आपके संप्रदाय में पगड़ी का तो रिवाज है नहीं, वो सिख कम्युनिटी से है, लेकिन सब एक है, सब भाई एक है हम लोग। सब भाई एक है। सौरभ, इससे बेहतर चीज शायद सुनने को आज के तारीख में, आज के डेट में नहीं मिलेगा। इनका नाम है जैन खान, और वो भी आए इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने, और वो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए पगड़ी पहने हैं, क्योंकि इस पूरा जो किस्सा है, इस मुद्दा है, इस मुद्दे की दिल में है पगड़ी। और अगर आपको ध्यान हो, वो आईपीएस ऑफिसर जसप्रीत सिंह, उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैंने पगड़ी पहना इसीलिए आप मेरे को खालिस्तानी कहे। तो इस पगड़ी से अभी लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे सौरभ? बिल्कुल, देखिए पंजाब में प्री इंडिपेंडेंस एक मूवमेंट भी चला था, पगड़ी संभाल जट्टा, एंड उसमें जो शहीद भगत सिंह के फादर थे, ही वाज अ प्रोमिनेंट लीडर उस पगड़ी संभाल जट्टा। तो पगड़ी तो शान है, और आप देखेंगे ये सरदार, जब कोई ना सरदार जी बोलते हैं, पास जी बोलते हैं, तो जी लगा के बोलते हैं, तो हमारा ट्रेडिशन है, जो सरदार है उसको और इज्जत दी जाती है।
जाहिर सी बात है कि कुछ फ्रिंज हर रिलीजन में होते हैं। यहाँ चाहे वो मुस्लिम्स में भी फ्रिंज हैं, सिख में भी फ्रिंज हैं, हिंदू में भी फ्रिंज हैं। हिंदू में भी यति नरसिंहानंद जैसे लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, मुसलमानों को मारने काटने की बात करते हैं। तो ऐसे फ्रिंज हर रिलीजन में है, पर किसी एक की वजह से सबको एक टाइपकास्ट, एक डेफिनेशन में डाल देना, एक खांचे में डाल करके बोलना, वो जाहिर सी बात है हमारे देश की जो का संविधान है उसके खिलाफ है। हमारी जो देश का जो मूल भावना है विविधता में एकता, वो उसके खिलाफ है। और यही वजह है कि पिछला जो जितना कह लें, टूल किट कह लें, चाहे वो एंटी नेशनल कह लें, खालिस्तानी मूवमेंट कह लें, लेकिन तीनों जो एग्रीकल्चर लॉज थे, तीनों कृषि कानून थे, वो प्रधानमंत्री मोदी को रद्द करने पड़े थे। और उन्होंने माफी मांगी थी और कहा था कि उनकी शायद उनकी तपस्या में कमी रह गई। तो तमाम बातें कह करके तीनों कृषि कानून रद्द किए गए थे। तो वो मूवमेंट सफल मूवमेंट था जो कि पंजाब ने लीड किया, हरियाणा ने ज्वाइन किया, यूपी ने ज्वाइन किया, और परमानेंटली सिख संगठन जो सिख फार्मर्स थे उनके द्वारा लीड किया हुआ ये आंदोलन था। Saurabh, इनका I give you many voices today. Huh? I give you I many. know people that's okay. I am speaking to people. I'm randomly talking to everyone. सौरभ, आपसे इनका परिचय करवा दे। इनका नाम है मिस्टर गुरमीत सिंह, और ये पहले दिन से आज तक इस जगह पे जुटे हुए हैं और प्रोटेस्ट को आगे लेके जा रहे हैं। और इनका एक दूसरा परिचय भी है, तृणमूल कांग्रेस से भी संबंध रखते हैं। तो इनका पिक्चर आईटी सेल से, बीजेपी के आईटी सेल और उनके इंचार्ज जो है धूमधाम से ट्विटर में और बाकी सोशल मीडिया साइट्स में वायरल किया कि आप देखो तृणमूल कांग्रेस का प्रोटेस्ट है, सिख कम्युनिटी का नहीं है। मैं एक बार ये सवाल फिर से उनसे करना चाहूंगा ताकि आप उनका जवाब सुन पाए। और ये जो आप देख पा रहे हैं लाइव ब्रॉडकास्ट में, ये जो भाई साहब है, मेरा भाई है, ये सौरभ शुक्ला है। ये बहुत वरिष्ठ पत्रकार है जो दिल्ली में फार्मर्स प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं। और उनका कहना है कि फार्मर्स जो प्रोटेस्ट चल रहा है उन तक भी ये मैसेज पहुंचा है, और वो भी बहुत हर्टफुल है कि ये खालिस्तानी रिमार्क जो मुद्दा इधर पे है, इनका कहना है कि सिर्फ बंगाल में सीमित नहीं है, वो सिंधु बॉर्डर में है। आपके सामने बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि आप तृणमूल कांग्रेस से ये प्रोटेस्ट को सामने ला रहे हैं। मैंने भी ये सवाल आपको पहले पूछा, उसका जवाब भी आपने दिया। क्या कहेंगे फिर से सर? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया मैं कौन सी पार्टी से जुड़ा हूँ, दैट्स ऑल सेकेंडरी। मैं खालसा स्कूल में जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं मोहन बागान का हॉकी कन्वेनर हूँ, मैं पंजाब स्पोर्ट्स का हॉकी कन्वेनर हूँ, खालसा क्लब का प्रेसिडेंट हूँ, पर सबसे पहले मैं सिख हूँ। आप मेरे को बताएं कि जब मेरी पगड़ी, जब मेरे अस्तित्व पर आघात होता है, चाहे मैं तृणमूल कांग्रेस में हूँ, चाहे मैं पंजाब स्पोर्ट्स में हूँ, चाहे मैं मोहन बागान में हूँ, चाहे मैं किसी स्कूल के साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं अपनी कौम की आवाज़ को बुलंद करूँ? मैं चला जाऊं क्या यहाँ से? क्या मेरा ये हक नहीं बनता कि जिस देश के लिए मेरे बुजुर्गों ने खून बहाया है, और ये जिस कौम से मैं बिलोंग करता हूँ, भगत सिंह की कौम से, जिस तरह ये हमें जलील कर रहे हैं, हमारे किसानों को रास्ते पे ये मार रहे हैं, सिंघू बॉर्डर पे आज भी हमारा संघर्ष चल रहा है। अगर मैं किसी पार्टी से जुड़ा हूँ तो मेरा कैसे अपनी कौम के प्रति कोई भी महत्व नहीं रह सकता क्या? ये इनके सारे जो प्रश्न है निराधार है। ये मेन मुद्दे से लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल जो चीज़ है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, आप इधर उधर ना भटका के। एक सिख आईपीएस ऑफिसर को अपनी ड्यूटी पे खालिस्तानी वर्ड बोल के बीजेपी ने बुलाया है या नहीं बुलाया है? मेल मुद्दा वही है, आप उस पर ही सीमित रहें। मैं क्या हूँ क्या नहीं, दैट्स सेकेंडरी। सौरभ, आपका कोई सवाल है? आपका कोई सवाल है? आप कुछ पूछना चाहेंगे? मेरा बस यही सवाल है इनसे कि आप लोग इसमें कहीं पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अब एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, तृणमूल कांग्रेस से तो हैं, अब जाहिर सी बात है माफी मांग रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी पगड़ी पहन के आए, पर क्या ये आंदोलन को पॉलिटिकल तो नहीं कर दिया जाएगा? क्योंकि ये यहाँ शंभू बॉर्डर पे भी यही आरोप लगाया जाता रहा है। उनका सवाल है, क्योंकि ये सवाल किसानों के लिए भी उठाया गया था कि ये किसान आंदोलन के पीछे कुछ राजनीति है कि नहीं, और ये एपॉलिटिकल है, ये इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव भी है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहना है कि आप देखिए एक पैटर्न है। सर, मैं आपको फिर वही बताता हूँ, हम क्या हैं क्या नहीं। 2020 में 1.5 साल हमारे किसान आंदोलन मेरे भाई करते रहे, 1.5 साल सड़क पे बैठे रहे। कुछ उनसे वादे किए गए एमएसपी पर, कुछ उन पे वादे किए गए कि सारे केसेस विड्रॉ होंगे, कुछ उनसे वादे किए गए कि जो भी
कैजुअलिटीज हुई हैं, जो मारे गए हैं किसान धरने के टाइम, उनको मुआवजा दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारी सूची लंबी थी। 3 साल हो गए, किसी भी काम को इन्होंने पूरा नहीं किया। एमएसपी की गारंटी नहीं देगी है। और जब उसके लिए दावी के लिए फिर किसान अगर रास्ते पे उतरते हैं, तब आप उन्हें खालिस्तानी बुला देते हो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, थोड़े दिन पहले भी चला था। हमारा क्रिकेटर है अर्शदीप सिंह, इंडिया के लिए खेल रहा है। एक दिन पहले वो 4 विकेट लेता है तो उसको इंडिया का स्टार बताया जाता है। फॉलोइंग डे वो पाकिस्तान के साथ एक कैच ड्रॉप कर देता है तो उसको खालिस्तानी बुला देते हैं। इन्होंने हमें समझ क्या रखा है? हम अपना खून देने वाली कौम है सर, हमसे हमारा अधिकार आप नहीं छीन सकते। ये आज़ादी हमारे भगत सिंह ने इसलिए नहीं हमें दिलाई थी कि हमें आज इन बहरूपियों से हमें ऐसी चीज़ें सुननी पड़े जो हमारे को कभी भी बर्दाश्त नहीं। और ये सिर्फ अब एक क्रिकेटर के साथ नहीं, ये अजहरुद्दीन के साथ भी हो चुका है, और इसके बाद मोहम्मद शामी के साथ भी हुआ है। हर टाइम ये जो टेंडेंसी है कि किसी को कैरेक्टराइज करे और आइडेंटिफाई करे ताकि ताकि उनको जलील किया जाए, इससे एक इंसान का जलील होता है कि देश ज्यादा जलील होता है? ये सारा देश जलील होता है। ये जो डिवीजन की पॉलिटिक्स है, जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो गोरों की थी, वो जो इनने चला के रखी है। भाई को भाई से कैसे लड़ाना है, मजहब के लोगों को दूसरे मजहब के लोगों से कैसे लड़ाना है, किसकी फ्रिज में कौन सा खाना हो, कौन सी लड़की क्या पहने, ये सारा अधिकार आदमियों से छीनना चाहते हैं। अपनी राजनीति करके, ये विभाजन पैदा करके सत्ता को हथियाना चाहते हैं। आदमी जागरूक हो गए हैं, दिल्ली में किसान जागरूक हो गए हैं, बंगाल में सारे समुदाय इनके खिलाफ जागरूक हो गए हैं। आने वाले दिनों में इनका सफाया तय है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सौरभ, गेटिंग बैक टू यू, what is the largest sentiment at the farmers protest when you are when you're covering it? Has the number increased as far as the number of protesters are concerned, number of farmers are concerned, or are these farmers essentially from one particular state, which is Punjab? See, there is a lot of crackdown against these farmers in the state of Haryana. Last time the Punjab was leading the protest and Haryana joined Punjab, but now this time the borders of Haryana are totally sealed to go to Punjab, because if you are going from Delhi to Punjab, you have to cross Haryana and you will get a lot of these barricades. And the farm leaders have been detained by Haryana police in Haryana. They are in house custody. In fact, yesterday, a farm leader who has crossed the border in Punjab, his name is Amarjeet Singh Modi. Punjab police has pasted a notice right outside his residence, and in that post, they have written that if Amarjeet Singh will continue taking part in this farm protest, his accounts are going to be seized and his property will be confiscated. This is the kind of crackdown upon the farmers of Haryana. That is why that mobilization is not happening in Haryana. But so far, a lot of these farmers have joined farmers in Punjab. Few farmers from UP have also reached. Few farmers of Rajasthan have also reached. But largely, the farmers who are there are from Punjab. They are from Punjab. And also, Saurabh, we have seen the kind of bandobast that has been done by Delhi police or by Haryana police. If you talk about carpet of nails, or if you talk about barricades, it's a huge bandobast. And Saurabh, both you and me had been covering the Bharat Joro Nyay Yatra, and in Assam, the Bharat Joro Nyay Yatra was not allowed to get inside Assam, and it was asked to follow a different route. And when Rohini Singh, a journalist, had spoken out about it on social media, Himanta Biswa Sharma, the Chief Minister of Assam, had quote-tweeted that and said that was Ram Rajya. Ram Raj. I mean, in which she said that in which state it happens like this, that somebody is trying to enter, and he said Ram Rajya. So he said that Assam mein Ram Rajya hai, that is why Rahul Gandhi is not being entered. So it's quite funny also. But as your first question was the kind of preparation, the kind of bandobast by police. So if you have to come to Chandigarh from Delhi, to cross to Delhi, to reach Haryana, you cannot go with the main highways. There are two main highways, Singhu border, which is totally sealed,
with the barricades, with the containers, with the nails. So you cannot go. So you have to go through villages. And if you cross Delhi and when you're in Haryana and to reach to Chandigarh, then you will face the same situation at Shahbad, which is in Kurukshetra, and in Ambala, where that main bandobast of Haryana police at the on the pull of river Ghaggar. So then again, you have to go through villages and you have to take a detour of 25 kilometers and go through villages and to from the Kacha Rasta. So this is the Delhi border is sealed, the Haryana Punjab border is sealed. The problem for commuters, and you can go by this car, they will check you, and you have to have press ID. And if you are traveling through a tractor, definitely then they will stop you and they'll check your ID card that you are not a farm activist who is trying to come to Delhi. So bandobast is huge there, and the kind of the tear gas firing, pellet gun firing, and one farmer has lost his life. He was just 21-year old, a small farmer. He was the day before yesterday. He Shub, was taking Shub, Shub Karan, and he was just 21-year old. His father is Divyang. His mother passed away. He stays with his dadi, grandmother. He has two younger sisters, and postmortem report is awaited. But there's a bullet shot right here, just behind his ear. So doctors will confirm that it is it's that bullet, 7 bullet, or it's a pellet bullet. They are yet to verify that claim that he was shot. But he passed away. He died because of the crackdown of Haryana police. So if you go near to the border, near to the barricade, they'll start firing tear gases. In fact, this video which is being showed is shot by me, and I definitely I wanted I tweeted it, and it's very important. And do you see, if you listen to the audio, uh, it is, I was there, and I thought that where am I? Like, these are farmers, and they are not using. They had proclaim machines, they had JCBs, but they were not using it. And the kind of tear gas firing, the kind of pellet gun firing, definitely, Tamal, there's a lot of anger in Punjab now. See, the Punjabis have to understand their history also. So they are martial. In Hindi we say that ये martial कौम है. आप जितना दबाओगे वो आगे आएंगे. But अभी from so far it has been they've not been taken the way of violence, and they will not take. In fact, they are saying that they are followers of Bhagat Singh, and but they will not use force against their own Jawans, because the Jawans who are deployed at the border, Haryana border, they are also son of farmers. So these are the sentiments. Now they will definitely make their future strategy. But for now, for a few days, they postponed their Delhi Cooch call, because now Shub Karan has passed away. They have some demands from Punjab government to give Shub Karan's family compensation, give job to his sisters. So they are now deliberating that. So they will meet today again tonight to decide future course of action. But definitely numbers are the lot of now farmers who have not joined so far now after the death of Shukran. They are also coming to the borders and joining these farmers, these farm unions who have been protesting at Shambu border from 13th of February. Tamal. Saurabh, I know you are very busy. I would be letting you free. But I need to understand, the government doesn't want a rerun of 2020. Is that the only reason why they don't want farmers to go to Delhi, or there is something more? Is it because of elections being so close? Is that the other reason? They definitely don't want to repeat 2020. And last time also there was some force used by used by Haryana police and Delhi police, but it was not sufficient. And they've taken lesson from the last time. That is why their bandobast is quite pakka and pukhta this time to stop these farmers. And they don't want any commotion at the border of Delhi, because elections are nearing. And as you've said, that as we've been listening, BJP leaders and Prime Minister Modi himself said that up ki baar 400 par. For that, they need to maintain that peace also at the Delhi border. So that is why that's the main reason where they clear instructions from Home Minister and Home Secretary not to allow these farmers to come and sit at the Delhi border. Saurabh, the reason why I brought that comparison कि आप किसानों के लिए
नेल्स के कारपेट बिछाए गए और इतने ज्यादा बंदोबस्त किया गया। आज अगर सेम चीज बीजेपी को रोकने के लिए है, बीजेपी का कोई प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल या फिर कर्नाटका या फिर तेलंगाना या फिर कोई दूसरे राज्य जो बीजेपी रूल नहीं है उस जगह पे हो जाए, तब रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में बीजेपी का आवाज उठेगा और नारा उठेगा कि दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, कि आप डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की गला दबाने के लिए, उनकी प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस के इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको जबरदस्ती रोका जा रहा है। लेकिन सेम चीज अगर असम में हो तो वो राम राज्य, किसानों को रोका जा रहा है, मालूम नहीं ये राम राज्य है कि नहीं। लेकिन ये कंपैरिजन के लिए मैंने वो सवाल आपसे किया था, वो बिल्कुल देखिए, कंपैरिजन दिया था। बिल्कुल तमाल 2014 से पहले जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी और तब आप पुराने प्रधानमंत्री मोदी के स्पीचेस देखिए, उन्होंने एमएसपी की गारंटी के कानून को लेकर के क्या क्या बोला हुआ है, एमएसपी की गारंटी को लेकर क्या क्या बोला हुआ है, और सत्ता में आते ही सुर बदल जाते हैं। और यही जीएसटी थी जिसको अपोज किया ऑपोजिशन ने, यही आधार था जिसको अपोज किया ऑपोजिशन ने, और फिर उसी को लेकर के आए, मैंडेटरी किया। तो जाहिर सी बात है कि जब सत्ता में रहते हैं तो कुछ और, विपक्ष में रहते हैं तो कुछ और ऐसे प्रदर्शन आप देखिए बीजेपी लीडर्स के भी फार्मर्स को लेकर के जो पुराने ट्वीट्स हैं वो आपको समझ में आ जाएगा कि जब वो अपोजिशन में थे तो उनकी क्या भाषा है, आज वो सत्ता में है तो उनकी क्या भाषा है। एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया है, पर जो उनका फॉर्मूला था किसानों के लिए, उनकी फसल के लिए C2 + 50%, उसको नहीं दे रहे हैं। तो मतलब ये एक चीज है जिसको लेकर के उनकी बेटी ने भी बोला है कि जो फार्म लीडर्स हैं उनकी मांगे जायज हैं। तो स्वामीनाथन ने जो कहा है आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, और स्वामीनाथन को आप भारत रत्न दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब विपक्ष में होते हैं तो बातें कुछ और, सुर कुछ और, जब पक्ष में आते हैं तो बातें कुछ और, सुर कुछ और। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए एंड फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस। If time permits, we would connect again sometime in the evening. Whenever. It was fantastic connecting with you, and you know what? I need to give out this disclaimer because बैठे हैं लोग, वो अभी शुरू हो जाएंगे कि आप देखो, दो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट दो मुद्दों को एक साथ करके they are trying to snowball it. That is not our objective. Our objective is clear. Two reporters talking about two separate incidents or two separate issues which are bonded by one single emotion, and that single emotion is called the Sikh. So it is not like brandishing all the farmers. We are trying to brandish all the farmers as Khalistani or insinuating that. No, that many toolkit people have done, that many people from the IT department have done. Let them, the IT cell, I beg your pardon, but the attempt is to connect this with the country, like Saurabh had tried connecting farmers' protests with the rest of the country, like both of us have tried connecting Manipur with the rest of the country. And the only objective of independent journalism is that every story belongs to the India, and every story should connect with India, not should remain restricted to one region. Right, Saurabh? Yes, absolutely, I agree. And our constitution gives equal right to everyone: Hindu, Muslim, Sikh, Isai, Baudd, Jain. So we are talking about the constitution rights, contribution, the power which has given to us by constitution. So it's about that also. Thank you so much for joining this afternoon. There had been a lot of reactions coming in. We will be going back to the reactions. But thank you so much, Saurabh, for your valuable time. Thank you so much. So I will now be going back to the visual and also speak to more people. Sir, आपसे 1 minute time मिल सकता है, sir? Okay. So there are people who have come here and who have been here for the past several days. Sir, you don't want to talk? Okay. Do you want? Okay. Who will talk? Okay, so this is he just said मैंने आपको call करके बुलाया because I didn't know that the protest has continued for the 4th day, and I the moment I learned I came down here. So yes, at the moment sir आपसे बात कर सकते हैं? सर नमस्ते, मेरा नाम है तमाल शाह, मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ। सर आप लोग बहुत दिन से आ रहे जा रहे इस प्रोटेस्ट में, ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा सर? जी जारी रहेगा। ओके। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते तब तक जारी रहेगा। और ये कंटिन्यू रहेगा। ओके। और सर ये माफ़ी क्यों इतना ज़रूरी है? क्या इसको इग्नोर किया जा सकता था? नहीं, इग्नोर नहीं किया जा सकता। मुझे मरना मंजूर है, पगड़ी पर आँच नहीं आने दूंगा। जो मेरी पगड़ी पे बोलेगा उसका मैं विरोध करूंगा।
और ये पगड़ी तो सिर्फ एक कौम का नहीं, पूरा देश का है। पगड़ी बोलते हैं, पगड़ी पूरी देश की पगड़ी होती है। कि इसका मतलब ये नहीं कि आप वो पगड़ी को देख के किसी को आइडेंटिफाई किए वो खालिस्तानी है, किसी की टोपी पहनी हो आइडेंटिफाई नहीं होता पाकिस्तानी है। ये जब से ये बीजेपी आई है ये ऑलरेडी चल रहा है कि मेरी पगड़ी पे कोई उंगली दिखाएगा, सॉरी मैं अपना मरना मुझे मंजूर है किंतु पगड़ी पे उंगली नहीं दिखाऊंगा। तो ये जब तक माफी नहीं मांगेंगे आप लोग इसको जारी रखेंगे? बिल्कुल जारी रखेंगे। और अगर कभी माफी मांगा ही नहीं तो? हम लोग बैठे हैं 2 साल से तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, हम लोग तो घर नहीं गए भैया। हम लोग बुजुर्ग बैठे हैं, 2-2 साल 3 4 साल के बच्चे बैठे हुए हैं, हमारी 70 साल 80 साल की माताएं वहाँ बैठी हुई हैं, 90 साल के बुजुर्ग वहाँ बैठे हुए हैं। वो जब दिल्ली नहीं जा सकते, हम लोग तो अभी यंग है, हम लोग कहाँ से चले जाएंगे घर में? अभी तो 2-3 दिन हुए हैं, चलेगा देखें जब तक चल सके। और ये जो एक टेंडेंसी है, कोई भी अगर बीजेपी से माफी मांग ले या फिर कोई आंदोलन में उतर जाए तो एक तरफ से कोई डायरेक्टली तो नहीं बोलते हैं, लेकिन उनका जो सोशल मीडिया बैटरी है उनके तरफ से शुरू हो जाता है कि एंटी नेशनल, ये खालिस्तानी एलिमेंट, इसमें पाकिस्तानी एंगल है, ये अर्बन नक्सल है, ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या है। तो ये देश का तो कभी हैबिट था नहीं सर। ये हैबिट जिंदगी में कभी देश का था नहीं, ना होना चाहिए। जब से ये मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, जब से ये बीजेपी सरकार आई है तब से ये स्टार्ट हो गया है। अपने जैसे पगड़ी पहन लिए, जब हम लोग की दरकार पड़ी कौम को, इंडिया की दरकार पड़ी, बॉर्डर में दरकार पड़ी, पाकिस्तान की लड़ाई की दरकार पड़ी, चाइना की लड़ाई की दरकार पड़ी, तब हम लोग सरदार जी है। जब हम लोग एंटी खड़े हो जाते कि आप बात गलत कर रहे हैं, तब हम लोग खालिस्तानी हो जाते। ये 2 पद नहीं चाहिए, हम लोग एक पद चाहिए। हम लोग इंडियन है, हम लोग बुजुर्ग यहाँ रहे हैं, हम लोग देश के लिए उन बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है। हम लोग इंडियन है, हम लोग इंडियन है, हम लोग खालिस्तानी नहीं है। और हाँ, दूसरी बात आपने जो बोला बीजेपी से माफी मांगना, बीजेपी कभी नहीं बोले। हम लोग जो बीजेपी के आपके पद अधिकारी हैं, जो शुभेंदु अधिकारी वहाँ बैठे थे, अग्निपाल मित्रा जो है पता कौन कौन है वो थे, उनसे हम लोग माफी मांगने को बोल रहे हैं। और माफी हम लोग से नहीं मांगने बोले, हम लोग अपने सिख कौम से माफी मांगने को बोल रहे हैं कि हम आप हमारे पास आइए अपने माफी मांग ली। नहीं, हम लोग जो सिख कौम है, हम लोग जो संस्था है उनसे माफी मांगिए आप, हम लोग से नहीं माफी मांगिए। सिख समाज से माफी मांगिए आप लोग। आप कह रहे सिख समाज से माफी मांगे, सर देश से माफी नहीं मांगना चाहिए। जो पगड़ी का मसला होता है ना सिख समाज का है, और देश से भी मांग लेगा तो अच्छी बात है, ये मांगेगा तो अच्छी बात है। उसके लिए कोई बड़प्पन बढ़ता है, जो माफी मांगता है बड़प्पन बढ़ता है, उससे कोई अगले के इज्जत नहीं जाता है, बड़प्पन बढ़ता है माफी मांगने से। अच्छा, हम लोग के हिसाब से। अच्छा, और उसको माफी मांग लेना चाहिए तो अच्छा रहेगा। सर आईपीएस जसप्रीत सिंह से तो बात नहीं हो पाया, लेकिन ये जो शब्द है, ये शब्द जब भी प्रयोग किया जाता है, मैंने बहुत, मेरे सिख दोस्त हैं वो कहते हैं कि बहुत ठेस पहुंचता है सर। ठेस बोलता है, पूरा ठेस पहुंचता है। जब ऐसे बोलता है, पंजाब में कोई बोलता है उसको 295 लगता है उसके ऊपर में, पगड़ी के ऊपर बोलेगा तो ये पगड़ी ऐसे नहीं मिला है, कुर्बानियाँ देने के मिला है। गुरु साहब के 9 कुर्बानियाँ दी हैं, बाप बेटा अपने बच्चों को। इसके लिए हम लोग के कितने कुर्बानियाँ दी हैं, पगड़ी के लिए दी है। तो इसके ऊपर कोई बोल नहीं सकता है, बोलना उसके लिए अच्छा बात नहीं है, ये बीजेपी के लिए अच्छा बात नहीं है, बोलना नहीं चाहिए। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ सकते हैं पश्चिम बंगाल में। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि संदेश खाली के जितने सारे महिला हैं उनसे भी उनको मिलाने की एक वो प्रयास करेंगे। संदेश खाली का एक अलग मुद्दा है, लेकिन प्रधानमंत्री अगर पश्चिम बंगाल में आए, अभी तक उसका पुष्टिकरण नहीं हुआ है क्योंकि वो कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन प्रधानमंत्री अगर पश्चिम बंगाल में आए, आप लोग चाहेंगे उनसे मिलने? हम लोग मिलने उसका विरोध करेंगे। हम लोग को खालिस्तानी बीजेपी बोलता है, प्रधानमंत्री बीजेपी का मिनिस्टर है, तो पीएम बीजेपी का है। तो हम लोग का किसान कितना पंजाब में खड़ा हुआ है, अभी गोली मार के मार दिया, कितने फटल हुए हैं। शेठू लड़का को उठा के हरियाणा में ले गया, और महाराष्ट्र के बंदे वहाँ पर जाके 12 बोर का फायर करते हैं, तो वो तो एकदम गलत है ना। जो आदमी का एक आग चला गया, एक का डेड बॉडी वहाँ पर लड़का का मौत हुआ, तो वे ऊपर में लोग बम फेंकते हैं, तो ऐसा बात तो नहीं है ना। तो अच्छा बात तब होता है जो साथ में ढंग से धरना देने देते, धरना देने तो हम लोग को देश से लग किया हुआ है, लोग का काट दिया, पूरा पंजाब को लग कर दिया है। तो हम लोग उनका भी समर्थन करते हैं। वहाँ पर उनको जो बीजेपी के अधिकारी जो भी पगड़ी पहने हुए खालिस्तानी बोलता है उसको माफी मांगना चाहिए, तो अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा हमसे बात करने के लिए। तो दिस यस सर। सर आप बंगाल से बिलोंग करते हो, कहाँ से करते हो? हाँ सर। अगर मैं आपको बांग्लादेशी बोलूँ कैसे लगेगा?
दुख लगेगा सर। दुख लगे ना, सेम प्रोसेस है। हाँ नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, लाइव चल रहा है एक मिनट, सर, लाइफ लेना। लाइव चल रहा है। सर वही बता रहा हूँ, आप बताओ, हमें खालिस्तानी बोल रहे हो, खालिस्तानी का एक ऊपर में आपने NSA एक्ट लगाया हुआ, ठीक है, तो जो किसान बैठे हैं वो खालिस्तानी है क्या? जो अपना हक मांग रहा, बीजेपी उसके ऊपर में NSA लगा रहा, उग्रवादी बोल रहा है, आज हम पर बोला, कल आप पर उठेगा। सर उठेगा नहीं, मैं बचपन से मैं मैं आपको बोल रहा हूँ ना सर, आज पंजाब पर एलिगेशन उठ रहा है ना, कल बंगाल पर भी उठेगा। आप ये बात लिख के रख लीजिएगा, ठीक है ना? का इंडिपेंडेंट जो हिंदुस्तान का आज़ादी के टाइम में खाली 2 ही कंट्री था, 2 स्टेट, बंगाल और पंजाब, दोनों ने सेक्रीफाई किया और हिंदुस्तान का कहीं टुकड़ा नहीं हुआ, ये दोनों स्टेट का टुकड़ा हुआ। हम लोगों को क्या मिला? सेक्रीफाइस से जितना जितना सेक्रीफाई बंगाल और पंजाब किया ना, ऑल ओवर इंडिया में कोई स्टेट नहीं किया। आज भी सर हम लोग कर रहे हैं, मगर क्या मिल रहा है हम लोग को? NSA लग रहा, खालिस्तानी का पोस्ट लग रहा है सर, हमें जॉब नहीं मिल रहा, ठीक है? अभी आप बताओ, हमें जबरदस्ती NSA का एक तो एक्ट लगा दिया तो हमारा करियर खत्म। सर इस कारण चलते हैं ना सर, आज हम पंजाब छोड़ के, इंडिया छोड़ के अब्रॉड जा रहे हैं। हमारी जो पॉपुलेशन है दिन पर दिन कमती होती जा रही है, क्यों? ये सब मेन कारण है सर। सर देश का सेक्रीफाई करेगा, आज भी मिलिट्री में देख लिए कौन करेगा? डेली सर हमारा पंजाब का शहीद हो रहा, और कोई शहीद हो रहा नहीं हो रहा। वहाँ सर हम लोग तरह कुछ नहीं, बॉर्डर में ना चाइना से लड़ सकते हो ना पाकिस्तान से लड़ सकते हो। LPARD जो अपना वेपन है सर, वो सर नेवी फोर्स यूज़ करता है। वो सर क्यों बैठा सर सिंघू बॉर्डर में? सर क्यों सर? खनौरी बॉर्डर में सर लेके गया ना सर, वो क्यों लेके गया वहाँ पर? सर हमें टेररिस्ट है, हम अपने दिल्ली में नहीं जा सकते, खाली हम अपना हक मांग लेंगे, हम लोग उग्रवादी हैं। सर आपने मुझसे सवाल पूछा कि आप बंगाल से हो, कल अगर कोई आपको बांग्लादेशी बुला दे, सर आपको दुख लग रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बोल दूं सर, हाँ जी, हाँ। ये बहुत सालों से ये सुनते हुए आए कि आपके ये जो पीस है, इस बैक में कोई निशान है कि नहीं, तो मुझे मालूम नहीं था कि इसका मतलब क्या है। फिर जब बड़ा हुआ तब समझाया गया, तो उसका मतलब है कि आप वो जो बार्ब्ड वायर से उस बॉर्डर्स के नीचे बॉर्डर पार करके आए और उससे आपको चोट लगा, वो निशान है कि नहीं। तो जब ये मुझे समझाया गया तब मैं तब मैं समझा कि इट इज ये बहुत ठेस पहुंचता है सर। तो आपने जो पूछा तो मैं उसका जवाब तो आपको दिया, लेकिन ऐसा सवाल भी किसी को पूछना नहीं चाहिए कि आप कौन हो, ना आपसे ना मुझसे। सर हम लोग सब देश के हैं। सबसे पहले हम इंडियन है, वी आर इंडियन, ठीक है ना? 1947 में सर सबसे, आप जब आज़ादी हुआ ना, तो सब नुकसान किसका हुआ सर? पूरा हिंदुस्तान आज़ादी मना रहा था, तो हमारा पंजाब, ठीक है, 8 लाख आदमी मरा सर, 8 लाख, ठीक है? अगर हम तरह 15 अगस्त वाले दिन आज़ादी मना सकते हैं ना, तो जो 8 लाख आदमी मरा था उनके लिए कैंडल मार्च भी यूज़ कर सकते हैं। कभी किसी ने नहीं किया सर। हिंदुस्तान में पूरा हिंदुस्तान आज़ादी मना रहा है, मगर जो पंजाब है ना सर, वो अपना 2 टुकड़ा करके बैठ गया। कितना बड़ा अपना दिल में जख्म लेके बैठा हुआ था। फिर भी हम इंडिया से साथ जुड़े हुए हैं, मगर हमें मेडल क्या मिल रहा? खालिस्तानी का सर। ऐसे नहीं बोलते, सब एक नहीं है सर। जो सच्चाई है सर, नहीं सर, हम आप तो इंडियन है ना, हम लोग इंडिया पुराना बैठे हुए हैं, आप भी पुराने बैठे हुए हैं, तभी हम लोग को खालिस्तानी बोलते हैं। जो अच्छा काम करता है, कोई नशा छुड़वाने का रेपुटेड लीडर, अगर एक देश का रेपुटेड लीडर ये बात बोल सकता है, तो सर आम आदमी तो हम लोग को इस तरह हम बोल रहे हैं। That is the larger question. When somebody holding a position, and again I am saying, it is a subject to investigation as whether Shubhendu Adhikari has said that or not. Again I say, there is a Bengali news channel attributing them. We are saying there is a video that they have played, and in that video they are claiming that they can hear the word Khalistani, and that too coming in from Shubhendu Adhikari. Now that video is also in circulation.
The fact of the matter is whether A or B doesn't matter. What matters is if somebody holding any position will use this as a sake of argument, where you identify people for the way he looks or she looks, for the race he or she belongs to, for the religion he or she belongs to, for the caste or creed anybody belongs to, then it creates a larger problem for a diverse country, because in a diverse country, the fundamental is tolerance. And there is another fundamental which is also opposed to that idea. So, the moment such questions are being institutionalized, the fear of inviting more polarization is there. And that you don't need in a diverse country, that we don't need in a democracy. Absolutely not. And that's the reason it is always expected anybody holding a position of power, be it in politics, be it a constitutional position, or be it anybody, even if you are a manager in the bank, it is expected that words used or words that come out from you should not hurt anyone or should not question the fundamentals of the country, because it is the tolerance which has to multiply so that it stays there forever. The moment you increase the multiplication of polarization more, it can only happen at the cost of tolerance. So if tolerance shrinks, the other thing would increase. And that is not good for our country. Nobody would ever want that. Nobody would ever want that. It has been a special broadcast from outside the BJP party office. This is the fourth day of the protest which is on, and the number has only swelled up. Many people have come out and many people have joined this protest. People belonging to different caste community have also come in, trying to give out a picture that this is not restricted to Sikh community alone. It was a special broadcast. It has already crossed an hour. And thank you so much for joining with us. As I said, Sandesh Khali as an issue is important and you're constantly focusing on it. Similarly, this too is important. If it involves human emotion, even if it means emotion of one individual, we will care for it. And that's the reason we have come back here. And as the protest has continued for the fourth day, we will be keeping a very close watch as how things unfold in days to come, with they being adamant, unrelenting with their demand that apology has to come from the High Command of BJP over the Khalistani, quote unquote, the Khalistani remark that people of the country believe is simply not hurtful to one community, is also antithetical to the very fundamental of our diverse democracy, which thrives on tolerance and coexistence. I will be winding up this live broadcast. We will be coming back live once again. Our focus would remain on this. But for the moment, thank you so much for joining with us. Thank you so much for engaging with us. And thank you so much for watching this video. If you do like, then please do like and share and subscribe to this channel. Do share the video if you think what you're trying to communicate makes sense and you are in agreement. And as I said, we will be coming back on this very issue once again in the course of the day. Thank you for watching.